میں بھوکی پیاسی اسی اسٹیشن پر اپنا ٹائم گزار رہی. نہ جانے ابھی زندگی میں اور کون کون سے دکھ باقی رہ گئے. مجھے اپنے سے زیادہ اس کی فکر تھی جس کو میں نے ابھی دیکھا بھی نہیں تھا. یہ شہریار کی نشانی تھا, میں اسے کھونا نہیں چاہتی تھی. میں شہریار کو یاد کر کے بھلک بھلک کر رو رہی تھی. تبھی مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے. میں نے جیسے ہی نظریں اٹھا کر دیکھا تو اسٹیشن ماسٹر وہاں کھڑا تھا. میری طرف دیکھتے ہی بولا, بیٹا میں دیکھ رہا ہوں آپ صبح سے یہیں بیٹھی ہو, آپ نے کہاں جانا ہے؟ کیا آپ کی گاڑی ابھی نہیں آئی؟ تبھی میں بولی, نہیں انکل, میں ایسی گاڑی کی مسافر ہوں جس کی کوئی منزل ہی نہیں ہے. وہ حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگے. وہ اسٹیشن ماسٹر کافی اچھے اخلاق کے محسوس ہو رہے تھے. وہ ادھیڑ عمر کے تھے, تقریباً 50 سے 55 سال کی عمر کے لگ بھگ ہوں. مجھے یوں پریشان دیکھ کر بولے, لیکن بیٹا آپ جوان بچی ہو, اس طرح آپ کا اسٹیشن پر اکیلے رہنا ٹھیک نہیں ہے. یہاں طرح طرح کے لوگ آتے ہیں, آپ اپنے گھر چلی جاؤ. اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ماں باپ معاف کر ہی دیتے ہیں. اگر تم سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہے تو ان سے معافی مانگ لو, اور اپنے اللہ سے بھی معافی مانگ لو. تبھی میں بولی, نہیں انکل, میں وہ گنہگار ہوں جو بغیر گناہ کے سزا کاٹ رہی ہوں. میری سزا صرف یہی ہے کہ میں اپنے اللہ سے اپنے نصیب اچھے لکھوا کے نہیں لائی. آپ مجھے یہاں کچھ ٹائم گزارنے دیں, میں جلد ہی اپنا کہیں انتظام کر لوں گی. اسٹیشن ماسٹر میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا, بیٹا تم مجھے بتانا نہیں چاہ رہی تو ٹھیک ہے, لیکن مجھے تمہاری فکر رہے گی. پورا اسٹیشن خالی ہونے والا ہے, تمہیں گھر چلنا چاہیے. اتنی بات کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے, لیکن میں گھٹنوں میں سر دے کر خوب جی بھر کے روئی. یہ بے بسی کی زندگی گزارتے گزارتے تھک گئی. میری زندگی کی خوشیاں مجھ سے چھن گئی تھی. میرے حصے کی خوشیاں صرف چند لمحات کی تھیں جو اب کبھی واپس لوٹ کر نہیں آ سکتی تھی. میرا نام زہرا ہے, میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی. میں ابھی پیدا ہوئی کہ میری ماں کچھ پیچیدگیوں کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو گئی. ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا, باپ مجھے ماں بن کر پالنے لگا. لیکن میں بدقسمت تھی کہ میری ماں کو گزرے ابھی 3 سال ہی ہوئے تھے کہ میرے ابو کو بھی دل کا دورہ پڑا اور مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے. اب میرا اس دنیا میں کوئی نہیں رہا تھا. ابو کا تو کوئی تھا ہی نہیں, وہ تو پہلے ہی یتیم تھے. ان کا کوئی رشتہ دار تھا اور نہ ہی کوئی بہن بھائی. امی کا ایک بھائی تھا. ماموں کو جیسے ہی میرے ابو کی موت کا پتہ چلا تو ماموں ہمارے گھر آئے. ابو کے کفن دفن کے بعد مجھے اپنے ساتھ لے گئے. ماموں مجھے بہت زیادہ پیار کرتے. ماموں کے اپنے بھی 2 بچے تھے. وہ ہر طرح سے کوشش کرتے کہ وہ اپنے بچوں کی طرح میرا خیال رکھیں, لیکن ممانی جان مجھے ذرا بھی پسند نہیں کرتی تھی. ذرا سی بات پر مجھے مارنے لگ جاتی. ماموں انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کرتے, لیکن وہ کسی کی ایک نہیں سنتی. میری وجہ سے ماموں اور ممانی کے درمیان بھی جھگڑا رہنے لگا. میں ماموں اور ممانی کا جھگڑا دیکھتے دیکھتے خود احساس کمتری کا شکار ہوتی جا رہی تھی. مجھے اللہ نے بے حد خوبصورت بنایا تھا. میری گوری رنگت, تیکھے نکو, خوبصورتی میں بالکل اپنی ماں جیسی تھی. میری جھیل جیسی آنکھیں اور لمبی گھنی سیاہ پلکیں. کوئی بھی دیکھتا تو فدا ہوئے بنا نہ رہ سکتا, لیکن اللہ نے قسمت ہی اتنی بری بنائی تھی. میرا اتنا معصوم چہرہ دیکھ کر بھی ممانی کو مجھ پر ذرا برابر ترس نہیں آتا. وہ اپنے بچوں کو طرح طرح کے کھانے بنا کر دیتی, جبکہ میں ہر چیز کے لیے ترستی. ماموں کے بچے اسکول جاتے تو میرا بھی دل کرتا کہ میں بھی اسکول جاؤں. ماموں جب مجھے یوں ہر چیز کے لیے ترستا دیکھتے تو ممانی سے چوری چپکے مجھے کچھ نہ کچھ دلوا دیتے. لیکن ممانی کو جیسے ہی اس بات کا علم ہوتا تو ماموں سے جھگڑا کرنے لگتی. ماموں کے بچے تھے, اسی لیے ممانی کو چھوڑ بھی نہیں سکتے, اور میری وجہ سے وہ کیوں اپنا گھر خراب کرتے. ماموں نے مجھے پاس ہی ایک گورنمنٹ اسکول میں داخل کروا دیا. میں پڑھائی میں بہت اچھی تھی, لیکن ماموں کے گھر میں رہتے ہوئے میں بہت زیادہ حساس ہو کر رہ گئی تھی. بہت کوشش کرتی کہ خود کو مضبوط بناؤں, لیکن جب بھی ممانی کو اپنے بچوں سے پیار کرتے دیکھتی تو میرے دل میں بھی یہ بات آتی کہ کاش میری بھی ماں ہوتی, مجھے اتنا پیار کرتی. میرے ابو ہوتے تو مجھے سینے سے لگا کر رکھتے. میں اگر بیمار ہوتی تب بھی ممانی مجھے پوچھتی تک نہیں. ماموں سارا دن کام کے سلسلے میں باہر ہی رہتے. وہ جب گھر آتے تو مجھے میڈیسن وغیرہ دلوا دیتے, لیکن ممانی میری بیماری کو بھی ناٹک سمجھتی. میں ابھی صرف 8 سال کی تھی. ممانی نے مجھ سے گھر کے کام کروانا شروع کر دیے. ان کی اپنی بیٹی شہزادیوں کی طرح زندگی گزار رہی تھی, جبکہ میں سارا دن ممانی کے گھر کے کام کرتی
जरा सा काम गलत हो जाता तो मम्मानी मुझे मारना शुरू कर देती। उन्हें जरा बराबर भी मुझ पर तरस नहीं आता। मम्मानी के दोनों बच्चे मामूली शक्लो सूरत के थे। मैं मम्मानी की बेटी से ज्यादा खूबसूरत थी। इसी वजह से मम्मानी मुझे देखकर जलती, मेरे मुंह पर तमाचा मारती और कहती, हुस्न इतना लेकर आई हो और अक्ल जरा बराबर भी नहीं है। मामू जब भी घर आते तो उदास हो जाते और कभी मम्मानी घर पर ना होती तो मुझे ढेर सारा प्यार करते और बोलते, बेटा मुझे माफ कर देना, मुझे समझ नहीं आती मैं कयामत के दिन तुम्हारी माँ को क्या जवाब दूंगा। कितनी उम्मीद थी ना मेरी बहन को मुझ पर कि उसका भाई उसे कभी अकेले नहीं छोड़ेगा। वो तो नहीं रही, लेकिन उसकी बेटी को मैं सहारा देकर भी सहारा नहीं दे सका। मैं बहुत बुरा हूँ। तो मैं कहती, नहीं मामू, आपका इसमें कोई कसूर नहीं है। आप क्यों खुद को इल्जाम देते हैं? मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। बस एक आप ही तो हैं जिनकी वजह से मैं इस घर में रह रही हूँ। मैं तो आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती। जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी, मम्मानी की नफरत भी मेरे लिए बढ़ती जा रही थी। मम्मानी नहीं चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर जाऊँ, क्योंकि उन्हें लगता कि अगर मैं पढ़ लिख गई तो मुझे उनकी बेटी से अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, क्योंकि मैं खूबसूरती में उनकी बेटी से कहीं आगे थी। स्कूल जाते हुए भी मम्मानी मुझे लाख बातें जैसे ही मैं स्कूल से वापस आती तो आते ही मुझे काम पर लगा देते, यहाँ तक कि मुझे इम्तिहान में भी पढ़ने का मौका न देती। लेकिन फिर भी मैं हर साल अच्छे नंबर लेकर पास होती। रात को जब सारे सो जाते तब उठकर मैं अपनी पढ़ाई करती। अभी मैं 9th के पेपर देकर फारिग हुई थी कि मम्मानी के जुल्मों सितम हद से ज्यादा बढ़ गए। जरा जरा सी गलती पर इतनी ज्यादा मारपीट करती कि मुझे लगता मुझे जान से मार देगी। एक दिन मम्मानी ने मुझे कपड़े इस्त्री करने के लिए बोला। मैं उनके कपड़े इस्त्री करते हुए अपनी अम्मी अब्बू को याद करके रो रही थी। मुझे समझ ही नहीं लगी कि किस वक्त मम्मानी का दुपट्टा जल गया। ये उनका नया सूट था। मम्मानी ने जब देखा कि उनका दुपट्टा जल गया है, उनको बेहद गुस्सा आया। उन्होंने इस्त्री उठाकर मेरे हाथ पर लगा दी। तकलीफ से बुरी तरह मैं तड़प उठी और मम्मानी की मिन्नत समाजित कर रही थी। मम्मानी जान, प्लीज मुझे माफ कर दे, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मम्मानी बोली, हाँ मनहूस, मैं जानती हूँ तुम्हारी मनहूसियत ही है। जब से तुम आई हो जैसे खुशियाँ हमारे घर से ही चली गई हैं। पहले अपने माँ बाप को खा गई और अब हमारे घर में आकर हमारी खुशियों को खाने में लगी हुई हो। न जाने मम्मानी मुझे हर दफा इतनी कड़वी बातें क्यों सुनाते जिनसे मेरा दिल जलता, लेकिन मैं उन सब बातों का जहर अपने अंदर उंडेलती रहती। न जाने इतना सब्र करते करते कब मैं बड़ी हो गई, मुझे समझ ही नहीं लगी। उस दिन जब मामू घर लौटे तो मेरा हाथ जला देखकर मामू तड़प उठे। बोले, जहरा बेटा, ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ पर, ये कैसे जल गया है? तभी मम्मानी बोली, इसे जितनी मर्जी अक्ल दे लो, इस लड़की को अक्ल नहीं आ सकती। अपने कपड़े इस्त्री कर रही थी कि इस्त्री को हाथ लगा लिया। एक ये मेरी बेटी है, इतनी समझदार है कि हर चीज का सलीका रखती है, और इसे तो मैं समझा समझा कर थक गई हूँ। न जाने क्यों इसे अक्ल नहीं आती। लेकिन मामू भाम गए थे कि बात ये। मेरी खामोशी और मेरे आंसू मामू को बता रहे थे कि ये सब कुछ मम्मानी का किया था। मामू को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। मामू ने काफी ज्यादा मम्मानी के साथ लड़ाई झगड़ा किया। मामू ने अपनी बेटी से पूछा, उसने साफ साफ बता दिया कि मम्मा ने ही जहरा का हाथ जलाया है। इस बात पर मम्मानी ने अपनी बेटी को खूब डांटा, लेकिन उसके बाद तो मेरी जिंदगी बिल्कुल अजाब बन गई। मम्मानी मुझसे खाना छीन लेती, मुझे खाना भी न खाने देती, मैं रात भर भूखी सोती। मामू को हर बात का इल्म था, इसीलिए वो चाहते थे कि किसी न किसी तरह वो मुझे मम्मानी से दूर करें, लेकिन वो कहाँ लेकर जाते? किसी रिश्तेदार के घर भी नहीं छोड़ सकते थे। नहीं तो रिश्तेदार क्या सोचते कि अपना घर होते हुए भी दूसरों के घर छोड़ता है। अब वैसे भी मैं 15 साल की हो चुकी थी, तो फिर मामू ने अपने किसी दोस्त से बात की कि वो मेरी शादी करना चाहते हैं। मामू ने मेरा रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। उनके ख्याल में अगर मेरी कहीं शादी हो जाएगी तो शायद मेरी जिंदगी बेहतर हो जाए, लेकिन मैं भी इतनी छोटी थी। मामू की ये बात सुनकर मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ कि मम्मानी जो जुल्म सितम करती है वो तो जैसे तैसे करके मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन मामू मुझे इतनी जल्दी अपने घर से भेज देना चाहते हैं कि मैं मामू पर अब क्या बोझ बनकर रह गई हूँ। उस दिन मामू ने मुझे कमरे में बुलाया और बोले, देखो बेटा, ये न समझना तुम मामू पर बोझ हो। तुम मुझ पर बोझ नहीं थी और न बोझ हो, बल्कि मैं तुम्हें इस जुल्म से छुटकारा दिलवाना चाहता हूँ। तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा घराना तलाश करूंगा जहाँ मेरी बेटी को कोई दुख नहीं होगा।
लेकिन वो नहीं जानते थे कि मैं अपना नसीब पहले से लिखवा कर आई हूँ। मामू ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढ लिया। वो लोग मुझे देखने आए। मम्मानी ने जब देखा कि वो इतनी शान और शौकत और अमीर कबीर फैमिली से ताल्लुक रखने वाले हैं, तो वो देखकर जलकर राख हो गए। चाहती थी कि किसी ना किसी तरह मेरी वहाँ शादी ना हो। मम्मानी ने उन लोगों के कान बहुत ज्यादा भरे कि ये मनहूस है, पहले अपने माँ बाप को खा गई, जब से आई है हमारे घर से रिस्क ही खत्म हो गया है। मुझे देखने के लिए वो लड़का खुद भी आया था। वो उम्र में काफी बड़ा था। मैं 15 साल की थी और उसकी उम्र तकरीबन 30 साल थी। मम्मानी की बातों पर उसने जरा बराबर यकीन नहीं किया और वो कह रहा था कि ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं, कोई मनहूसियत नहीं होती। ये तो फिर इतनी मासूम सी लड़की है, मैं इसी से शादी करूंगा। कुछ ही दिन के बाद मेरी शादी थी। मम्मानी के जुल्म तो अभी भी कम नहीं हो। अब तो ताने और ज्यादा बढ़ गए थे कि कभी मुझे कहती कि बन सवर कर उन लोगों के सामने आई थी, बहुत आग लगी हुई है तुम्हें शादी की। मम्मानी की ये बातें मेरे दिल पर वार करती, लेकिन मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि मैं कुछ ही दिन की मेहमान थी। शहरियार मुझे बहुत अच्छे लगे। बेशक वो उम्र के ज्यादा थे, लेकिन वो इंतहाई नेक और संजीदा किस्म के। मेरी और शहरियार की शादी चंद ही दिन में हो गई। मैं दुल्हन बनकर जैसे ही शहरियार के घर गई तो मेरा बहुत अच्छे से इस्तकबाल हुआ। मेरी सास, नंदे और शहरियार मुझे बहुत ज्यादा इज्जत दे रहे थे। मैं बहुत खुश थी, और खुश क्यों ना होती, इतने अमीर कबीर घर में मेरी शादी हुई थी और ऊपर से इतनी मोहब्बत करने वाला शोहर मिला था। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी के दिन यूं बदल जाएंगे। उस दिन जब मेरी शादी की पहली रात थी, मैंने अंदाजा कर लिया था कि मैंने आज तक जितने दुख बर्दाश्त किए हैं, अल्लाह ने मुझे ये उनका इनाम दी। शहरियार जैसे ही कमरे में आए, उन्होंने मेरा हाथ थामा और बोले, अभी तुम बहुत छोटी हो, लेकिन अब तुम मेरे निकाह में हो और मेरी बीवी हो। मैं तुम्हें बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करूंगा, कभी तुम पर गुस्सा नहीं कर। और हाँ, घर वालों को भी समझा दूंगा कि अगर किसी ने तुम पर कभी गुस्सा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम यहाँ बिल्कुल आजादी के साथ जिंदगी जी सकते। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ शादी का फैसला करके बहुत अच्छा किया। इतनी बातों से मैं जान गया था कि तुम्हारी मम्मानी का सलूक तुम्हारे साथ कुछ बेहतर नहीं है, लेकिन अब तुम फिक्र नहीं करो। अब तुम्हारी जिंदगी से तमाम दुख दर्द खत्म हो चुके हैं। अब तुम्हारा शोहर तुम्हारी जिंदगी में आ गया है। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। मैं तो मोहब्बत के मायने भी नहीं जानती। उस शख्स ने मुझे मोहब्बत करना सिखाया था। देखते ही देखते मैं शहरियार से बेहद मोहब्बत करने लगी। उसके बिना एक मिनट रहना मुश्किल हो जाता। जब कभी ये घर से बाहर होते तो मैं बेताबी से उनका इंतजार करती। जब ये घर आते तो मुझे ऐसा लगता मेरी उजड़ी दुनिया दोबारा से आबाद हो गई। मेरी सास और नंदे भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार कर मुझे कोई काम न करने दे। जब कभी किसी काम को हाथ लगाती तो वो कह देती कि अभी दिन ही कितने हुए हैं शादी को, तुम आराम करो और ज्यादा से ज्यादा टाइम शहरियार के साथ गुजारो। मैं और शहरियार हनीमून के लिए गए। शहरियार ने मुझे बहुत से शहर घुमाए। मैं बहुत खुश थी, इतनी खुश कि मेरी पूरी जिंदगी में कभी इतनी खुशियाँ नसीब नहीं हुई थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी ये खुशियाँ चंद लम्हात की। मेरी शादी को 3 महीने गुजर गए, लेकिन अभी तक मैं बिल्कुल पहले दिन की दुल्हन की तरह बनी संवरी रही। सब लोग मेरे नाज नखरे उठाते और शहरियार को मुझसे इतनी मोहब्बत थी कि मुझे लगता कि मैं दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की हूँ जिसका शोहर उससे बेहद मोहब्बत करता है। उस दिन अचानक से मेरी तबीयत खराब हुई। मुझे हल्का हल्का सा बुखार और साथ में मेरा सर बहुत ज्यादा चकरा रहा था। शहरियार ने जब देखा कि मेरी तबीयत खराब है, वो मुझे फौरन अस्पताल लेकर चले गए। मैं उनसे कहती भी रही कि थोड़ी सी तबीयत खराब है, ठीक हो जाएगी, लेकिन वो इतने परेशान हो गए कि बोले, नहीं, ऐसे कैसे तबीयत ठीक होगी? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तेरा शोहर मर जाएगा। मैंने शहरियार के मुंह पर हाथ रखा और बोली, अल्लाह ना करे शहरी कि आपको कुछ हो, मेरी जिंदगी भी आपको लग जाए। तभी शहरियार बोले, तो बस ठीक है, चलो अभी और इसी वक्त लेकर जाऊंगा तुम्हें डॉक्टर के पास, क्योंकि तुम्हारी सेहत बहुत जरूरी है। मैं मुस्कुरा दी। वो मुझे लेकर अस्पताल गए तो डॉक्टर ने जो खुशखबरी सुनाई, ये सुनकर शहरियार के पांव जमीन पर नहीं लग रहे थे। वो बेहद खुश थे क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि हम दोनों माँ बाप बनने वाले हैं। मैं प्रेग्नेंट थी। शहरियार अस्पताल में ही मुझे गोद में उठाकर नाचना शुरू हो गए। तभी मैं बोली, शहरियार क्या कर रहे हैं? सब लोग देख रहे हैं। शहरियार बोले, देख रहे हैं तो देखें, इतनी बड़ी खुशी तुम मुझे दे रही हो, मैं उसे सेलिब्रेट भी ना करूं?
वहाँ खड़े सब लोग हम दोनों की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन शहरी को जरा बराबर भी शर्म नहीं थी, जबकि मैं शर्म से पानी पानी हो रही थी। शहरयार मुझे लेकर घर आ गए थे। आते ही उन्होंने ये खुशखबरी अपने घर वालों को सुना दी। सब घर वाले बेहद खुश थे। मुझे घर छोड़कर शहरयार खुद मिठाई लेने चले गए, क्योंकि वो इस खुशी के मौके पर सबका मुंह मीठा करवाना चाहते थे। लेकिन वो मिठाई लेने गए तो वापस लौट कर नहीं आए। फिर उनकी लाश ही घर आई थी। शहरयार का एक ट्रक के साथ बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। उनके दिमाग में चोट आई थी और वो मौके पर ही वफात पा गए। मुझे ऐसे लगता था मेरी जिंदगी में दोबारा से कयामत बर्पा हो गई है। माँ बाप वफात पाए तो उस वक्त मैं बहुत छोटी थी। मैं कुछ नहीं जानती थी दुख दर्द क्या होता है। आज सच में जान पाई थी कि असल तकलीफ अपनों के जुदा होने की कैसी होती है। मेरी जान से ज्यादा प्यार करने वाला शोहर आज मुझे छोड़कर चला गया। वो इतना खुश था कि शायद खुशी रास नहीं आई थी। मेरे शोहर की मैयत सामने पड़ी थी और मोहल्ले की औरतें एक दूसरे के कान में बातें कर रही थी कि ये लड़की मनहूस है, क्योंकि मम्मानी ने आते ही पूरे मोहल्ले की औरतों के कान में ये बात डाल दी थी कि मैं पहले अपने माँ बाप को खा गई, फिर मम्मानी के घर की खुशियाँ खा गई और अब अपने शोहर को मारने में मेरी मनहूसियत का हाथ है। उन औरतों की बातें सुनकर मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। जनाजे के बाद सब अपने अपने घर जा चुके थे। मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। मैं जो एक मिनट भी शहरयार के बिना नहीं रहती थी, आज वो सुबह से लेकर शाम तक मुझे नजर नहीं आए थे। मैं बहुत ज्यादा रो रही थी। मेरी सास कमरे में आई और बोली, मनहूस, खा गई ना मेरे बेटे को। तेरी मम्मानी सच ही कहती थी कि तुम मनहूस हो। मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती, कि तुमसे अपने बेटे की शादी कर दी। ना जाने क्यों मैंने शहरयार की बात मान ली थी। तुम ही उसकी मौत की वजह बनी हो। मनहूस हो तुम। ये मेरी सास थी, मेरी शहरी की माँ, जो मुझे बहुत प्यार करती, मेरी जान जीती थी। आज वो मुझे इतनी ज्यादा बातें कर रही थी, लेकिन सच ही तो कह रही थी कि मैं तो पहले ही मनहूस थी। पहले अपने माँ बाप को खा गई, अब शोहर को। मुझे जीने का कोई हक नहीं था, मुझे मर जाना चाहिए था। मैं सोच रही थी कि शहरयार के साथ ही मुझे क्यों नहीं मौत आ गई। फिर सोचा नहीं मर सकती थी, क्योंकि उस वक्त शहरयार की निशानी मेरे पास थी, उसका होने वाला बच्चा। मैं अपने आप को उसकी गुनहगार नहीं करना चाहती थी। मैंने उसे टूट कर मोहब्बत की थी, अब उसके बच्चे को भी अपने साथ नहीं मानना चाहती थी। मुझे जिंदा रहना था शहरयार के बच्चे के लिए। मैंने खुद को मजबूत किया और कितनी देर तक मैं सास और नंदू की यही बातें सुनती रही। मेरी जिंदगी वहीं से दोबारा शुरू हो गई थी, जो मम्मानी के घर गुजार कर आई थी। वही जुल्म सितम। सारा दिन मैं उसी हालत में काम करती, लेकिन मेरी सास नंदे फिर भी खुश न होती, फिर भी मुझे लाख बातें सुनाती। फिर एक दिन मेरी सास शहरयार की तस्वीर देखकर रो रही थी। शहरयार को अभी सिर्फ 1 महीना हुआ था। मैं इद्दत में थी कि मेरी सास को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि मुझे बाजू से पकड़ा और घर से बाहर निकाल दिया और बोली कि चली जाओ, तुम्हारे लिए घर में कोई जगह नहीं है, तुम मनहूस हो। अगर तुम मजीद मेरे घर में रही तो मेरे घर के हालात ठीक नहीं रहेंगे। मेरा छोटा बेटा, उसे भी तुम खा जाओगी। मैं तुम्हें इस घर में नहीं रख सकती। मैं बहुत ज्यादा मिन्नत समाजित कर रही थी। प्लीज शहरयार की खातिर मुझे इस घर में रहने दे दें। यहाँ शहरयार की खुशबू आती है, मुझे यहीं रहना है, मुझे कहीं नहीं जाना। प्लीज शहरी के बच्चे की खातिर मुझे रहने दें। वो बोली, शहरयार इस दुनिया से चला गया है, अब तुम्हारा भी हर ताल्लुक हमारे साथ खत्म हो गया है, और ये बच्चा हम नहीं जानते शहरयार का है भी या नहीं। उन्होंने मेरे किरदार पर बात की थी। ये बात मैं गवारा नहीं कर सकती थी। अब मैं यहाँ रहना भी नहीं चाहती थी। मैं वहाँ से मम्मानी के घर गई, लेकिन मामू काम के सिलसिले में दुबई जा चुके थे। मम्मानी ने जैसे ही दरवाजा खोला तो मुझे देखकर बोली, तुम मनहूस फिर आ गई? क्या निकाल दिया है सास ससुर ने घर से? मैं बोली, मुझे आपकी जरूरत है मम्मानी, प्लीज मेरी मदद करें। मम्मानी बोली, चलो यहाँ से दफा हो जाओ, मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ये कहकर मम्मानी ने दरवाजा बंद कर दिया। मैं इतनी देर तक खड़ी दरवाजा खटखटाती रही। मम्मानी प्लीज दरवाजा खोल कर देखें, मैं इस हालत में कहाँ जाऊंगी? मुझे नहीं तो कम से कम मेरे होने वाले बच्चे पर तरस खा ले, मुझे यहाँ रहने दें। लेकिन मम्मानी मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो बार बार कह रही थी कि मनहूस, मैं कह रही हूँ चली जा यहाँ से। नहीं है तुम्हारा मामू जो तुम्हें सहारा देगा, चला गया है वो मुल्क से बाहर, अब तुम्हें यहाँ कोई नहीं रखेगा। जाओ, तुम्हारी मनूसियत मेरे बच्चों को भी नुकसान पहुंचाएगी।
आधी रात तक मैं खड़ी मम्मानी उनके दरवाजे पर दस्तक देती रही, लेकिन मम्मानी ने दरवाज़ा नहीं खोला। रोते हुए मैं वहाँ से चल दी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ जाऊँगी। चलते चलते मेरे पाँव दुखने लगे थे। मैं एक रेलवे स्टेशन पर पहुँच गई। मैंने कहाँ जाना है मैं ये नहीं जानती थी। मैं स्टेशन पर पड़े बेंच पर बैठ गई। पूरी रात मैंने उसी रेलवे स्टेशन के बेंच पर गुजार दी। लोग अपनी मंजिल पर आ जा रहे थे। बहुत सी गाड़ियाँ आती और गुजर जाती, लेकिन मैं किसी गाड़ी की मुसाफिर नहीं थी। मैं वहीं बैठी रो रही थी। मैं मुजस्मा बनी उन लोगों को तके जा रही थी, लेकिन ख्यालों में सिर्फ शहरयार छाए थे। शहरयार की मोहब्बत को याद करके बुरी तरह रो रही थी। रो रो कर हलकान हो चुकी थी। ना खाने का होश था, ना पीने का होश। मैं बिल्कुल खाली हाथ घर से निकली थी। कुछ भी नहीं था मेरे पास। ये दिन भी गुजर गया और आज स्टेशन पर बैठे मुझे एक रात और एक दिन हो गया था। मैं भूखी प्यासी स्टेशन पर टाइम गुजार रही थी। पता नहीं जिंदगी में और कौन से दुख बाकी रह गए थे। मुझे अपने से ज्यादा उसकी फिक्र होने लगी जिसको मैंने अभी देखा तक नहीं था। मैं शहरयार की उस निशानी को यूं नहीं मानना चाहती थी। मैं यही सोच रही थी कि मुझे उस बच्चे को जिंदा रखने के लिए कुछ न कुछ जरूर करना पड़ेगा। इस तरह हिम्मत हार कर मैं उस बच्चे को कैसे पालूंगी? ये शहरयार की निशानी है। मैं यही सोच रही थी, तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने जैसे ही नजरें उठाकर देखा तो स्टेशन मास्टर वहाँ खड़ा था। मेरी तरफ देखते ही बोला, बेटा मैं देख रहा हूँ आप सुबह से यहीं बैठी हो। आपने कहाँ जाना है? क्या आपकी गाड़ी अभी नहीं आई? तो मैं बोली, नहीं अंकल, मैं ऐसी गाड़ी की मुसाफिर हूँ जिसकी कोई मंजिल ही नहीं है। वो हैरानगी से मेरी तरफ देखने लगे। वो स्टेशन मास्टर काफी अच्छे अखलाक के थे। वो तकरीबन 50 से 55 साल की उम्र के लग रहे थे। मुझे यूं परेशान देखकर बोले, बेटा आप जवान बच्ची हो, इस तरह आपका स्टेशन पर अकेले रहना ठीक नहीं है। यहाँ तरह तरह के लोग आते जाते हैं। आप अपने घर चली जाओ। अगर कोई गलती हो जाए तो माँ बाप माफ कर देते हैं। अगर तुमसे कोई गलती हुई है तो उनसे माफी मांग लो और अपने अल्लाह से भी माफी मांग लो। तभी मैं बोली, नहीं, मैं वो गुनहगार हूँ जो बगैर किसी गुनाह के सजा काट रही हूँ। मेरी सजा सिर्फ यही है कि मैं अपने अल्लाह से अपने नसीब अच्छे नहीं लिखवा कर लाई। आप मुझे कुछ टाइम यहाँ गुजारने दें, मैं जल्द ही अपना इंतजाम कहीं कर लूंगी। स्टेशन मास्टर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। वो मेरे सर पर प्यार देते हुए बोला, बेटा मुझे तुम बताना नहीं चाह रही तो ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र रहेगी। पूरा स्टेशन खाली होने वाला है, तुम्हें घर चले जाना चाहिए। इतनी बात कहकर वो वहां से चले गए, लेकिन मैं घुटनों में सर देकर खूब जी भर कर रोई। बेबसी की जिंदगी गुजारते गुजारते थक गई। मेरी जिंदगी की खुशियां मुझसे छिन गई थी। मेरे हिस्से की खुशियां सिर्फ चंद लम्हात की थी जो कभी वापस लौट कर नहीं आ सकती थी। लेकिन मैंने खुद को मजबूत बनाया। मेरे पास और कुछ भी नहीं था। शहरयार ने मुंह दिखाई के लिए जो मुझे अंगूठी दी थी, वो मेरी और शहरयार की मोहब्बत का पहला तोहफा थी। वो मेरे पास थी, काफी महंगी थी। मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं ये अंगूठी बेचकर कोई काम शुरू कर दूं। मैं मजबूर हो गई थी ऐसा सोचने पर। दिल नहीं करता था ऐसा करने का, लेकिन क्या करती। मुझे अपनी फिक्र नहीं थी, मुझे उस आने वाले बच्चे की फिक्र थी। मैंने वो अंगूठी बेच दी और अगले ही दिन मैंने सोच लिया कि मैं उसी रेलवे स्टेशन पर मीठे पकवान का ठेला लगाऊंगी। मैंने जरूरी सामान खरीद लिया। मैंने खुद को इतना मजबूत बनाया जितना मजबूत हर लड़की को होना चाहिए, ताकि जब कभी उस पर ऐसा टाइम आए तो वो अकेले में ऐसे हालात से लड़ सके। मुझे कुछ और तो इतना खास बनाना नहीं आता था, क्योंकि वो मम्मानी ने कभी खाना बनाने के नजदीक मुझे जाने भी नहीं दिया था। बाकी घर के सारे काम मुझसे करवाती। सिर्फ एक मीठे पकवान में अक्सर मम्मानी को बनाते देखती थी, जो उनके बच्चों को बहुत पसंद थे। ये मुझे बनाने भी आते थे। मैंने सोचा क्यों ना मीठे पकवान का ठेला लगा लूं। जरूरी सामान खरीदते ही मैंने मीठे पकवान का ठेला लगा दिया। अब मेरी आंखों से आंसू बिल्कुल खत्म हो गए थे। अब मैं खुद को मजबूत साबित करना चाहती थी। अगले दिन वही स्टेशन मास्टर मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, शायद इसलिए कि मैंने जीना सीख लिया था। लेकिन मेरे पकवान किसी ने भी नहीं खरीदे। सारा दिन उसी तरह गुजर गया। मैं बहुत ज्यादा मायूस थी। अगले दिन जैसे ही मैंने मीठे पकवान बनाए तो मुझे महसूस हुआ कि इर्द गिर्द बहुत से लोगों का हुजूम था जो मुझसे मीठे पकवान खरीद रहे थे। उसी हुजूम में एक नौजवान आया और उसने ढेर सारे पकवान मुझसे खरीदे और उसने काफी अच्छा मुआवजा दिया। अगले दिन मैंने उससे ज्यादा बनाए तो वो नौजवान फिर से आया और वहीं बैठकर ढेर सारे पकवान खा गया। मैं बहुत हैरान थी कि ये मीठे पकवान कैसे इतने खा लेता है।
मीठा तो इतना खाते ही कराहत महसूस होती है, लेकिन फिर सोचती कि हर बंदे की अपनी पसंद होती है। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। मेरे पकवान बहुत ज्यादा बिकने लगे। मैंने वहीं करीब ही एक घर में रेंट पर ले लिया और वहीं रहना शुरू हो गई। 1 महीने में ही मेरे मीठे पकवान का ठेला खूब चलने लगा। सिर्फ एक नौजवान ही इतने पकवान खरीद लेता कि मेरी दिहाड़ी लग जाती। एक दिन जैसे ही वो नौजवान सामने आया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखें इंतहाई सुर्ख कलर की हो रही थी और देखते ही देखते वो कपकपाने लगा। उसकी शक्ल एक भयानक आदमी की शक्ल इख्तियार कर गई। मैं उसे देखकर चीखने चिल्लाने लगी। वहाँ इर्द गिर्द खड़े लोगों को शायद मेरी चीखों पुकार सुनाई नहीं दे रही थी। वो नौजवान मेरी तरफ बढ़ा और बोला, देखो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मैं कितने दिन से तुम्हारे पकवान खाने के लिए आता हूँ, लेकिन देखो मैंने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। मैं फिर बोली, कौन हो तुम? 1 मिनट पहले वो मुझे दोबारा अपनी असली शक्ल इख्तियार कर गया और बोला, क्या हो गया तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं वही हूँ जो पहले आता था। मैंने उसे अपना वहम समझा और बोली, सॉरी माफ कीजिएगा, ना जाने मुझे क्या होता जा रहा है। मुझे हर शख्स भयानक नजर आने लगा है। वो नौजवान इंतहाई अच्छे अखलाक का मालिक था। देखते ही देखते वो उस नौजवान के साथ मेरी काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब मुझे जब कभी जरूरत होती वो मुझे सामान वगैरह बाजार से ला कर देता। अब बहुत से लोग मेरे पकवान खरीदने लगे। उस नौजवान ने अपना नाम हैदर बताया था। हैदर शक्ल सूरत के साथ दिल का भी बहुत अच्छा था। अब ये मेरे ठेले पर मेरे साथ काम करवाता। एक दिन मैंने देखा कि स्टेशन मास्टर के साथ खड़ा बातें कर रहा था। बहुत अजीब जुबान में बातें कर रहे थे। मैं कुछ समझ नहीं पाई। जब से हैदर मेरे ठेले पर काम करने लगा तो ठेले पर बहुत ज्यादा रश रहने लगा। बहुत से लोग आते और हाथों हाथ मेरे सारे मीठे पकवान खरीद लेते। मैं बहुत हैरान होती कि पहले यही पकवान बिकते नहीं थे और अब यही पकवान है कि लोग लाइनों पर खड़े होकर लेते हैं। देखते ही देखते मेरा काम अरूज पर पहुंच गया। इस सारे में हैदर ने मेरा बहुत ज्यादा हाथ बटाया। अगर वो मेरी इतनी मदद ना करवाता तो शायद मेरा कारोबार इस जगह ना आता जहां अब था। मेरी अब तबीयत खराब रहने लगी। उस दिन अचानक से मेरी ठेले पर ही तबीयत खराब हो गई। हैदर मुझे लेकर घर गया। उसने मेरा बहुत ख्याल रखा और बोला, देखो जहरा, ऐसी हालत में तुम्हें खुद का बहुत ख्याल रखना चाहिए, लेकिन तुम खुद पर तवज्जो नहीं देती। वो ऐसे मुझे नसीहत कर रहा था जैसे उसका मेरे साथ बहुत गहरा रिश्ता हो। मैं बोली, मैं खुद ख्याल रख सकती हूँ, तुम जाओ यहाँ से। उसने जवाब दिया, ठीक है मैं चला जाता हूँ, तुम्हें ठेले पर आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही सारा काम देख लूंगा। मैं बोली, मेरा काम है, मैं खुद देख लूंगी। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, जब कोई अपना आपसे कह रहा हो ना कि आप अपना ख्याल रखो तो ख्याल रखना चाहिए। तो मैं बोली, कौन? मेरा अपना तो इस दुनिया में कोई नहीं रहा, मैं तो बिल्कुल अकेली हूँ। मेरा जो अपना था मुझे छोड़कर चला गया। हैदर मेरी तरफ देखते हुए बोला, जो चला गया उसकी कदर करती हो, जो तुम्हारे पास है उसकी कदर क्यों नहीं करती? मैं उसकी बात पर शशतर रह गई। वो बात को घुमा गया और बोला, तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, मैं ठेला खुद ही संभाल लूंगा। ये कहकर वो घर से चला गया, लेकिन मैं उसकी बात सोचने पर मजबूर हो गई। अगले दिन मेरी तबीयत कुछ संभल गई। मैं सुबह होते ही ठेले पर पहुंची। हैदर के साथ वहाँ कुछ और लोगों को बैठे देखकर मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। वहाँ जितने भी लोग उस रेलवे स्टेशन पर थे सबके सब इंतहाई भयानक शक्ल के थे। ऐसे लग रहा था ये कोई और ही मखलूक हो। मैं सिर्फ जो शक्लो सूरत पहचान सकती थी वो सिर्फ हैदर की थी। वो अपनी असली शक्लो सूरत में था, बाकी सब इंतहाई भयानक शक्ल में थे। वहाँ देखते ही मेरी चीखों पुकार बुलंद होने लगी। हैदर भागता हुआ मेरी तरफ आया और बोला, क्या हुआ जहरा तुम्हें? तभी वो भयानक शक्लों वाले आदमियों की तरफ देखकर बोला, देखो मैंने तुमसे कहा था ना कि इसके सामने अपनी ये शक्ल लेकर ना आना, वो इस कंडीशन में नहीं है, दफा हो जाओ यहाँ से तुम सब लोग। यहाँ से देखते ही देखते फिर सब लोग दोबारा से इंसानी शक्ल में आ गए। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। ये बात मेरे जहन पर नक्श होकर रह गई थी। अब मुझे उस रेलवे स्टेशन की एक एक बात और हर चीज अजीब लगी। वहाँ पर लोगों के चलने फिरने का अंदाज, वहाँ पर लगे बड़े बड़े मुजस्मे, हर चीज ही मुझे हैरान करती। इससे पहले मुझे ऐसा कभी कुछ नजर नहीं आता। हालांकि मैं पिछले 5-6 महीने से यही काम कर रही थी, लेकिन न जाने क्यों मुझे ये सब कुछ अभी नजर आने लगा था और मैं बहुत ज्यादा डरने लगी। अब मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं रेलवे स्टेशन पर आऊं, लेकिन क्या करती, मजबूरी थी।
मुझे ये सब कुछ करना था अपने लिए, अपने बच्चे के लिए। ऐसे ही करते मेरे 9 महीने गुजर गए। हैदर भी मेरे साथ ही रहा। हैदर ने उन हालात में मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया। ठेला तकरीबन सारा दिन हैदर ही संभालता। मेरे यहाँ एक नन्हे से मेहमान की आमद हुई। अल्लाह ने मुझे चांद सा बेटा दिया। ये बिल्कुल शहरयार जैसा था। उसे देखते ही मैंने उसे खूब प्यार किया, क्योंकि ये शहरयार की कॉपी था। वो शहरयार जिससे मैं बेहद मोहब्बत करती। पहले दिन उसे हैदर ने अपनी गोद में उठाया और बोला, बहुत प्यारा बेटा है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। वो बोला, आज मैं तुमसे वो बात करना चाहता हूँ जो मैं पिछले कई महीनों से नहीं कर सका। मुझे तुम्हारे साथ 7 महीने हो गए, लेकिन मैं डरता था वो बात करने से जो मैं आज करने जा रहा हूँ। देखो, अब तुम्हारा ये नन्हा मेहमान भी दुनिया में आ गया है। तुम ऐसा करो, मुझसे शादी कर लो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ। तभी मैंने जवाब दिया, ये क्या बात कर रहे हो हैदर? तुम नहीं जानते कि मैं शहरयार की बीवी हूँ और उसके बच्चे की माँ भी हूँ। तो वो बोला, मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं तुम्हारी और शहरयार की जिंदगी के बारे में एक एक चीज जानता हूँ। तुम्हारे साथ आज तक जो होता रहा वो सब कुछ भी जानता हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। और तुम परवाह ना करना, मैं इस बच्चे को बाप से बढ़कर प्यार दूंगा। तुम देख लेना, मैं बिल्कुल इंसानों जैसा नहीं हूँ जिन्होंने तुम्हें धिक्कार दिया, जिन्होंने तुम्हें मनहूस कहा। मैं हैरान थी कि हैदर को ये सब बातें किसने बताई। हालांकि आज से पहले मैंने कभी हैदर से इस मुतालिक बात नहीं की थी, ना ही शहरयार के मुतालिक कोई बात की थी। उसने एक दफा मुझसे शादी के बारे में पूछा। मैंने तभी बोल दिया, हाँ मेरी शादी हुई थी, लेकिन मेरा शोहर नहीं रहा। मैंने उसे ये नहीं बताया था कि मेरे शोहर का नाम शहरयार है, लेकिन न जाने कैसे वो ये सब कुछ जान गया। मैं अस्पताल से डिस्चार्ज हुई तो ये मुझे घर ले गया। ऐसी हालत में उसने मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। मैं उसे बोली, मेरे घर से निकल जाओ, आज के बाद कभी मेरे घर ना आना, क्योंकि मैं तुम्हारा यहाँ आना गवारा नहीं करती। तुम मेरे लिए ना महरूम हो। आज तक सिर्फ काम के सिलसिले में तुम मेरे साथ रहे, ये मेरी मजबूरी थी, लेकिन अब मेरी जिंदगी में मेरा बेटा आ गया है। अब मैं तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करूंगी। अब मैं अकेली ही ठेला चलाऊंगी, तुम कभी मुझे नजर ना आना। वो बोला, जहरा देखो, तुम जज्बाती हो रही हो। तुम जानती हो कि तुम कहाँ हो। यहाँ तुम अकेले नहीं रह सकती। यहाँ अगर तुम रह रही हो तो मेरी वजह से रह रही हो। मैं उसकी तरफ हक्का बक्का देख रही थी। मैं बोली, क्या मतलब तुम्हारी वजह से रह रही हूँ? उसने जवाब दिया, ये कोई इंसानी दुनिया नहीं है, ये कोहकाफ है। और वो रेलवे स्टेशन भी कोहकाफ का था। वो इंसानी दुनिया का रेलवे स्टेशन नहीं था। और वहाँ के सारे जिन्नात हैं। जो स्टेशन मास्टर तुम्हें पहली रात मिला था वो मेरा बाप था। उसी के कहने पर ही मैं तुम्हारी मदद के लिए आया था, लेकिन फिर तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। मैं एक जिन ज़्यादा हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ। एक जिन ज़्यादा होते हुए तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारी खातिर हर वो काम करने के लिए तैयार हूँ जो तुम करवाना चाहती हो, लेकिन यूं मेरी मोहब्बत को न ठुकराओ। मैं तुम्हारे बेटे को हमेशा बाप का प्यार दूंगा और उसे कभी महसूस नहीं होने दूंगा कि मैं इंसान नहीं, एक जिन ज़्यादा हूँ। मैं हमेशा इंसान बनकर उसके साथ रहूंगा। तभी मैं बोली, ये तुम क्या कह रहे हो हैदर? तुम मजाक कर रहे हो मुझसे? तुम इंसान ही हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कैसे जिन्नात की दुनिया में आ गई हूँ? मैं इंसानी दुनिया में थी। मैं अपनी मम्मानी के घर से निकली थी और मैं इस रेलवे स्टेशन पर आई थी। तुम झूठ बोल रहे हो। फिर वो सारी बातें मेरे दिमाग में गर्दिश करने लगी। वो भयानक शक्ल के आदमी, वो मुजस्मे, मैं हर चीज को देखकर खौफजदा हो गई थी। फिर मुझे थोड़ा यकीन आने लगा कि हैदर जो कह रहा है वो सच है। ये सारी बातें सोचकर मैंने बेटे की तरफ देखा तो जल्दी से उठ खड़ी हुई और बोली, देखो हैदर, मैं जान गई हूँ कि तुम सच में जिनजादे हो। अब मुझे सारी बातें याद आ गई हैं जो मैंने यहाँ पर देखी थी, और अब मुझे महसूस हो रहा है कि मैं सच में इंसानी दुनिया में नहीं हूँ। ये कोई कोहकाफ है। लेकिन देखो, मुझे मेरी दुनिया में वापस छोड़ाओ। मैं कोहकाफ में नहीं रहना चाहती। मेरा बेटा एक इंसान का बच्चा और मैं उसकी परवरिश में इंसानी दुनिया में करना चाहती हूँ। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मैं तुम्हारी मोहब्बत की कदर करती हूँ, लेकिन मुझे माफ कर देना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि तुम एक जिन ज़ादे हो और मैं एक आदम ज़ादी। तुम मुझे आज तक जो कुछ भी मेरे लिए तुमने किया वो एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती, लेकिन एक एहसान मुझ पर कर दो। जहाँ तुम्हारे इतने एहसान में मैं सर उठाए हुए हूँ, एक और उठा लूंगी। मुझे मेरी इंसानी दुनिया में वापस छोड़ाओ। मैं अपने बेटे की परवरिश अपनी दुनिया में करना चाहती हूँ जहाँ सिर्फ और सिर्फ इंसान नजर आते हैं। मैं इंसानों में रहकर उसकी ऐसी तरबियत करना चाहती हूँ कि ये कभी किसी की बेटी को मनहूस न समझे, किसी के साथ जुल्म सितम न करे।
मैं उन्हीं इंसानों के बीच रहकर अपने बेटे की तरबियत ऐसी करूंगी कि दुनिया उसकी तरबियत की मिसालें देगी, लेकिन मैं तुम्हारी मदद के बगैर नहीं कर सकती। अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरी बात मान लो। हैदर ने मेरी बात सुनकर दूसरी साइड मुंह मोड़ लिया। अब की बार में कुछ खौफसदा हो गई कि न जाने अब हैदर का रिएक्शन कैसा होगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद जैसे ही उसने अपना चेहरा मेरी तरफ किया तो उसका पूरा चेहरा आंसुओं से तर था और बेबहा आंसू उसकी आंखों से बहते जा रहे थे। ये एक जिन ज्यादा होकर एक आदमजादी के लिए इतने आंसू बहा रहा था। वो बोला, देखो ज़हरा, तुम इंसानी दुनिया में रहना चाहती हो तो जाओ, अपने बेटे की परवरिश करना चाहती हो वो भी करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन देखो, अभी तुम्हारी जवानी शुरू हुई है, अभी तुम सिर्फ 16-17 साल की और अपनी जिंदगी ऐसे खराब कर दोगी। देखो मेरी बात मान लो और मुझसे शादी कर लो। मैंने जवाब दिया, नहीं हैदर, मैंने तुमसे पहले भी माजरत की है और अब भी कर रही हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मुझे अपने बेटे के लिए अकेले जिंदगी गुजारना है। मैं हमेशा शहरयार की यादों में रहना चाहती हूँ। शहरयार ने मुझे बेइंतहा मोहब्बत की, मैं उसके साथ बेवफाई नहीं कर सकती। फिर वो मेरी तरफ देख कर बोला, और मेरी मोहब्बत का क्या? मैंने भी तुमसे बहुत मोहब्बत की है, मुझसे बेवफाई कर लोगी? तो मैं बोली, तुम्हारी मोहब्बत यकतरफा, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं और ना ही मैं तुमसे कोई बेवफाई कर रही हूँ। देखो, तुम मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। वो बोला, ठीक है, अगर मेरा प्यार मेरा साथ नहीं निभाना चाहता तो मैं तो पीछे नहीं हटूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन हाँ, तुम्हें खुश रखने के लिए तुम्हारी ये बात मान लेता हूँ, मैं तुम्हें आज ही इंसानी दुनिया में वापस छोड़ाऊंगा। लेकिन मुझसे वादा करके जाओ कि तुम कभी मुझे नहीं भुलाओगी। तुम बेशक मुझसे मोहब्बत ना करो, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ एक अच्छा टाइम गुजारा है, उस लिहाज से मुझे याद रख लेना। और जब मैं तुम्हें मिलने आऊँ तो मुझसे मिल लेना, कुछ देर बाद मुझसे बातें कर लेना, ताकि मैं अपने दिल को सुकून दे सकूं। नहीं तो मैं सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारूंगा। तुम नहीं जानती मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करने लगा हूँ। तुम्हारी मोहब्बत में पूरी उम्र तड़पूंगा। मैं किसी जिनजादी से भी शादी नहीं करूंगा, लेकिन जब कभी तुम्हें इंसानी दुनिया में मेरी जरूरत हुई, मैं टाइम से पहले वहां पहुंच जाऊंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। और हम जिन्नात अपने वादे के पक्के होते हैं और ये वादा सारी उम्र निभाऊंगा। इतनी बात कहती हैदर की आंखें आंसू से भरी थी। वो बहुत ज्यादा रो रहा था। मुझे उस पर तरस भी आया, लेकिन मैं क्या करती, अपने हिस्से की मोहब्बत में किसी और से कर चुकी थी। अब उसे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। फिर हैदर मुझे लेकर इंसानी दुनिया में आ गया। उसने मुझे बहुत ज्यादा मालो दौलत दिया। मैंने एक बहुत अच्छा घर बना लिया और एक बहुत बड़े होटल की मालिक हूँ। मेरा बेटा इस शहर के सबसे महंगे स्कूल में तालीम हासिल कर रहा है। एक दिन रास्ते में मुझे मेरी सास मिली। मेरी शान और शौकत देखकर और मेरे साथ उस बच्चे को देखकर वो तड़प उठी और बोली, ये मेरे शहरी का बेटा है, मुझे माफ कर दो और घर वापस आ जाओ। लेकिन मैंने कह दिया, जब आपने मुझे घर से निकाल दिया था, मेरा कोई वसीला नहीं था, तब मैंने बहुत मुश्किलात देखे। अब मेरे पास खुदा की दी हर चीज है। अब मैं अपने बेटे को लेकर वहाँ नहीं जाऊंगी। मम्मानी को भी जब इल्म हुआ कि मैं इतनी अमीर हो गई हूँ, वो भी मेरे घर के चक्कर काटने लगे। लेकिन पहले तो मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं उन सबको माफ करूँ। फिर मैंने दिल से उन सबको माफ किया। अभी वो सब मुझसे मिलने आती है। मेरी सास नंदी भी मेरे घर आती जाती है, क्योंकि मैं उन्हें शहरियार के बेटे से मिलने से नहीं रोक सकती। वो उनके बेटे की निशानी है। वो जिनज़ादा हर चांद की 14वीं रात को मुझसे मिलने आता है। जब भी कोई मुश्किल होती है, वो मेरी सारी मुश्किलात को खुद ब खुद हल करता है। वो अभी भी मुझसे उम्मीद भरी नजरों से देखता है कि शायद कभी मैं उससे शादी कर लूं।